I welcome all of you to my class, and I think we can wait for 5 minutes if your colleagues arrive. Before we start the actual class, I would like to say something that now I think you have not much time. So now be serious about your study, about the subject which you are going to examine. अभी यही सब्जेक्ट हैं जो आपका एग्जाम पैथोलॉजी फार्माकोलॉजी तो हो ही गया क्लियर आपका, इज इट? हो गया, कोई दो चार रह गए वो बात अलग है, ओवरऑल इट इज क्लियर हो गया है. अब यही सब्जेक्ट है कम्युनिटी मेडिसिन, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी एंड फॉरेंसिक. आई थिंक फॉरेंसिक मेडिसिन आल्सो. Earlier it was with second MBBS, but now it has been included in third MBBS part first. So now you have to take it seriously. And one message, not for you who are present here, message to you to be conveyed to your friends who are not here today, that at least you should advise your friends to attend the classes, theory and practical, so at least they will get something. अगर वो नहीं भी पढ़ते हैं तो कुछ तो उनके कहते हैं ना मारवाड़ी में पल्ले पड़ेगा. तो क्लास तो अटेंड कर रहे हैं, बाहर क्लास अटेंड नहीं करके बाहर भी क्या कर रहे हैं. सो दिस इज एडवाइस नॉट टू यू बट टू योर फ्रेंड. थ्रू यू कन्वे दिस थिंग टू देम बिकॉज यू आर वेल विशर ऑफ योर फ्रेंड्स. So today we are going to discuss a particular topic, that is geriatrics. It is like a pediatrics. Pediatrics means something related to the children, and geriatric means something related to old men like me. We will try to define what is geriatrics. We will try to define other words related to geriatrics, and then we will try to discuss what are the various problems specifically related to this age group of the person. As you all are aware that some diseases are very much particular to the infants, जो 1 साल से छोटे बच्चों को ही होती है. कुछ बीमारियां, कुछ तकलीफ ऐसी है जो एडल्टहुड में होती है, कुछ एडोलेसेंट में होती है, कुछ यंग एज में होती है. ऐसे देर आर स्पेसिफिक मेडिकल एंड हेल्थ रिक्वायरमेंट of these person of old age. So as you are doctor, you are concerned to all the persons, whether it is young or old. So today we are going to discuss about the geriatrics. What do you understand by geriatrics? First of all, there are two words. One is geriatrics and second is gerontology. Is there any difference between these two? Both are related to old men. Geriatrics and gerontology. Gerontology is like physiology. In physiology, what you study? You study various functions of the normal human body. अगर सही शरीर बिल्कुल सही है, कोई पैथोलॉजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हाउ बॉडी रिएक्ट, क्या क्या उसमें, कितना ब्लड प्रेशर, कितनी पल्स रेट, कितनी रेस्पिरेशन, कितनी होती है एज ए नॉर्मल. So gerontology means study of physiological and psychological changes which are incidental to old age. These are normal changes. उम्र के हिसाब से ये बदलाव आते ही हैं, कुदरती हैं. ये फिजियोलॉजिकल चेंजेज ही हैं ओल्ड एज में. तो ओल्ड एज में क्या क्या चेंजेज आते हैं, स्टडी ऑफ दीज आर gerontology like physiology. Then what is geriatrics? The science that deals with the study of disease and their treatment peculiar to old age, also known as clinical gerontology. Gerontology means study physiological changes, study of the physiological changes of old age. And geriatrics means clinical gerontology, means related to disease, or also known as geriatrics, just like pediatrics. Pediatrics means we study disease, how to manage, how to prevent the disease in the children. In the same way, geriatrics means disease particularly, especially related to old age, how to prevent them, how to manage them is known as
geriatrics. Now I am talking old age. What do you mean by old age? Old age की क्या परिभाषा है? If a person of 60 years should be considered as old man, or 70 years or 80 years, क्या definition है? और ये तो हो गया geriatrics means disease related to old age person. So what is old age? No standard definition of old age. कोई particular definition नहीं है कि 60 साल के बाद old age है, 70 year के बाद है. हर एक की थोड़ी थोड़ी difference होता है. And but whatever it is normal, inevitable. आप इसको रोक नहीं सकते. ये changes old age आएगी and biological, it is biological phenomenon. बॉडी के अंदर चेंजेज आ रहे हैं. ये डिजीज नहीं है. ओल्ड एज इज नॉट ए डिजीज. इट इज ए बायोलॉजिकल नॉर्मल इनएविटेबल चेंजेज इन इंडिया. अब इसकी किस एज में हम ओल्ड एज मानेंगे? इन इंडिया अर्ली ओल्ड एज अप टू 75 ईयर्स. 75 साल तक, मतलब 60 साल से लेके यूजुअली 75 साल से नीचे उनको हम अर्ली एज एंड लेट ओल्ड एज मोर देन दो कैटेगरी बनाई है उन्होंने कि 75 ईयर से नीचे हैं, 60 साल से 75 से नीचे अर्ली ओल्ड एज, और 75 ईयर से अबो है दैट इज लेट ओल्ड एज. दोनों ही ओल्ड एज है. यूजुअली हम 60 ईयर्स को मान के चलते हैं कि ओल्ड एज स्टार्टेड एट 60 ईयर्स. एंड इन डेवलप कंट्री 65 से अबो को मानते हैं. डेवलप कंट्री मीन्स जो डेवलप हो चुकी है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, उनमें हम इंस्टेड ऑफ 60 वी कंसीडर ओल्ड एज आफ्टर 65 years. And in developing country like India, we consider old age after 60 years, divided into two: below 75 early old age, after 75 late old age. Then question is this: we should take it seriously. ओल्ड एज डिजीज प्रॉब्लम को क्या सीरियसली लेने की जरूरत है? इतने हैं क्या ओल्ड आदमी इस दुनिया में जिसके लिए हम वरी करें, या एक दो के लिए पूरा टॉपिक पढ़े जा रहे हैं? इज इट नेसेसरी फॉर अस टू स्टडी? वर्ल्ड पॉपुलेशन 1998 में 530 मिलियंस वर ओल्ड एज, एंड आउट ऑफ इट 9% ऑफ टोटल, जितनी टोटल पॉपुलेशन थी उसमें 9% आदमी ओल्ड एज के थे इन 1998 में. और डेवलप कंट्री में 15% थे, और लेस डेवलप में 6.7% थे, और 61.2% लेस डेवलपिंग. जो डेवलपिंग है, बिल्कुल ही गरीब कंट्रीज है, उनमें तो 61% तक ओल्ड एज आदमी है. इसका मतलब पॉपुलेशन तो बहुत है ओल्ड एज आदमियों की. एंड ग्रेजुअली इट इज इंक्रीजिंग, एंड इट इज एंटिसिपेटेड दैट अबाउट 2050 अबाउट 500 मिलियन पर्सन विल बी ऑफ ओल्ड एज. अगर इंडिया का देखें तो 2020 में 1000 मिलियन एंड 70% इन डेवलप्ड कंट्रीज. इंडिया में इतने थे. 1971 में इट वाज 5%, 1981 में 6%, 1991 में 67. ये सारे सेंसस के डेटाज हैं. 2001 में 7.7%, 2016 में 8.9%, एंड वी एंटिसिपेट बाय 2026 इट विल बी 33.3%. आपने डेटा देखे होंगे, ग्रेजुअली इट इज इंक्रीजिंग. जो जो साल गुजर रहे हैं, ओल्ड एज मैन की पॉपुलेशन परसेंटेज में बढ़ती जा रही है. एंड नाउ ए डेज दिस इज बिकम ए वेरी पॉपुलर टॉपिक फॉर द मेडिकल मैन. व्हेन वी वर द स्टूडेंट ऑफ MBBS, मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट वाज मेडिसिन. किसको पीजी लेनी होती थी, किसमें लेते थे? मेडिसिन में. उसके बाद लेते थे पीडियाट्रिक्स में, उसके बाद लेते थे सर्जरी में. यही सब्जेक्ट थे. उसके बाद टाइम बदलता गया. When before 10 or 20 years back, रेडियोलॉजी became at the top. हमारे टाइम रेडियोलॉजी को कोई हाथ नहीं लगाता, क्योंकि उस टाइम रेडियोथेरेपी और डायग्नोसिस अलग अलग नहीं होती थी, एक ही रेडियोलॉजी थी. और रेडियोलॉजी को कोई हाथ टच ही नहीं करता था कि कौन जमेले में पड़े, एक्सरे, ये करो वो करो, कैंसर का खतरा, कोई हाथ नहीं लगाता था. टाइम केम, आज से 10 साल पहले रेडियोलॉजी बिकम द टॉप. पीजी में आज जो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है ना, रेडियोलॉजी में सबसे ऊपर जा रही है. टाइम चेंज हो गया, अल्ट्रासाउंड आ गए, MRI आ गई, CT स्कैन आ गया, डॉक्टर को खुद करना नहीं पड़ रहा, मशीन कर रही है.
पैसे लगा के, करोड़ रुपए लगा के मशीन खरीद लो और बैठे बैठे काम करते रहो, कुछ नहीं करना। रात को कोई इमरजेंसी नहीं, कोई चीर फाड़ नहीं करना, कुछ नहीं करना, दिमाग ही नहीं लगाना, जरूरत ही नहीं है, मशीन लगा रही है सब कुछ। तो रेडियोलॉजी बिकम एट द टॉप। रिसेंटली आई हैव नोटेड कि मैं तो पीजी स्टूडेंट्स को को हॉस्टल में एडमिशन देता हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड रहता है किस डिपार्टमेंट में किस तरह के बच्चे आ रहे हैं। नाउ आई हैव ऑब्जर्व फ्रॉम लास्ट 2-3 years, ऑन्कोलॉजी हैज बिकम एट द टॉप। कैंसर टॉप पर आ गया है, उसमें ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं क्योंकि बीमारी इस हिसाब से बढ़ रही है। और उसके ट्रीटमेंट की भी, आप पहले तो ट्रीटमेंट नहीं था तो लोग कहते थे कैंसर में लेके करना क्या, इलाज तो नहीं। अब ट्रीटमेंट जो आ रहे हैं, ऑन्कोलॉजी हैज बिकम एट द टॉप। एंड आफ्टर दिस ऑन्कोलॉजी, दिस इज आवर एंटिसिपेशन कि जेरोंटोलॉजी विल बी एट द टॉप। डॉक्टर पीजी जेरोंटोलॉजी में क्या करें, ये दिस इज, आपने देखा ना आंकड़े बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है और बढ़ भी रही है और लोगों के पास पैसे भी है। गवर्नमेंट की सोशल सर्विसेज है, चिरंजीवी जी योजना, फलानी योजना, गवर्नमेंट खुद खर्चा उठाने जा रही है। जब गवर्नमेंट खुद खर्चा उठा रही है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, नेचुरली दिस टॉपिक इज बिकम द रिसेंट मोस्ट पॉपुलर टॉपिक ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन एंड स्पेशलिटी इन कमिंग डेज। एंड इन दिस जापान इज द मोस्ट एल्डरली। जापान में सबसे ज्यादा बूढ़े आदमी के परसेंट निकलते जापान में, क्योंकि जापान की जो लाइफ है वो भी सबसे ज्यादा जापान की है। इट इज अबाउट 82 years, सबसे ज्यादा बूढ़े आदमी जापान में। दैट इज डेवलप्ड कंट्री। पूरी दुनिया में उम्र सबसे ज्यादा जापान वालों की है। वेरियस फैक्टर्स, पीछे से आ जाया करो अगर लेट आना हो, तब मत किया करो दूसरों को जो टाइम पर आ गए हैं उनको। आपको लेट आने का थोड़ा बहुत राइट मिल सकता है, लेकिन डिस्टर्ब करने का राइट नहीं मिलेगा। Now come to exactly about the geriatrics, means clinical gerontology, not the simple gerontology, clinical gerontology or geriatrics means we want to know the various health problem of the old age person. उनमें कौन कौन सी बीमारियां, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेज वो तो पता ही है। फिजियोलॉजिकल, पहले तो हम फिजियोलॉजिकल लें, मीन्स जेरोंटोलॉजी प्लेन लें। फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आते हैं, बायोलॉजिकल एज इज नॉट आइडेंटिकल टू क्रोनोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज मतलब जो दिखती है, और क्रोनोलॉजिकल एज 1951 में मेरा बर्थ हुआ था, आज मैं 71 साल का हो गया, मैं बहुत, दैट इज क्रोनोलॉजिकल एज। और बायोलॉजिकल एज है जो दिखती है आपको, शरीर में चेंजेस आ गए, कैटरेक्ट हो गए कि नहीं, बाल सफेद हो गए नहीं, दांत टूट गए कि नहीं, ये चेहरे पर झुर्रियां आ गई, दिस इज बायोलॉजिकल एज। तो बायोलॉजिकल एज जो आइडेंटिकल नहीं होती। कई आदमी 70 साल में भी लुक में देखो तो हेल्दी दिखते हैं, कई 50 साल में बुढ़ापा दिखने लग जाता है। तो क्रोनोलॉजिक एज नॉट आइडेंटिकल ड्यू टू एजिंग प्रोसेस, आल्सो नोन एज यूजन चेंजेस। नॉर्मली क्या क्या आते हैं जो फिजियोलॉजिकल है, नॉट ए डिजीज, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। सेनाइल कैटरेक्ट जिसको कहते हैं सफेद मोतिया आंख का, ग्लूकोमा, प्रेशर, काला मोतिया भी बोलते हैं जिसको, प्रेशर इन द आई, नर्व डीफनेस, कानों में सुनना कम हो जाए, ऑस्टियोपोरोसिस अफेक्टिंग मोबिलिटी, चल नहीं सकता आदमी, घुटने काम करने बंद कर देते हैं, एम्फाइसीमा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, लंग्स में लंग बिकम एम्फाइसीमा, देन फेलियर ऑफ स्पेशल, और बाकी स्पेशल सेंसेज जितने भी हैं उन सब में कोई न कोई कमी आएगी। एंड चेंज इन फिजिकल आउटलुक एंड मेंटल आउटलुक, देखने में बुढ़ा लगने लग जाएगा, शक्ल से पता लग जाता है ये बुढ़ा है। और साइकोलॉजिकल विचारों में चेंज, जो आदमी हर जगह हर चीज को साइकोलॉजी सीरियसली ले रहा था, कि बिकम, आपने देखा होगा बुजुर्ग आदमी कहीं सड़क के किनारे खड़े होकर पेशाब करने लग जाते, आप तुझे कैसा आदमी, उनकी नॉर्मल चेंजेस हैं। साइकोलॉजी में वो ज्यादा परवाह नहीं करते जो कौन देख रहा है, लोग क्या कहेंगे, फटे पुराने कपड़े पहन के बाजार में निकल जाएंगे, दे डोंट बॉदर, बिकॉज दीज आर दी नॉर्मल साइकोलॉजिकल चेंजेज हैं जो एज के हिसाब से आते हैं। ये तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस। मेंटल चेंजेस में लॉस ऑफ मेमोरी, आल्सो नोन एज सेनाइल डिमेंशिया, याद नहीं रहता, खास करके रिसेंट मेमोरी जी। अभी उनको कह दो कि जी आपको बाजार से ये चीज लेके आनी है, अगर लिख के नहीं दिया दे विल कम ब्लैंक, याद ही नहीं रहेगा क्या क्या चीजें मंगाई थी। सेनाइल डिमेंशिया, रिजिडिटी ऑफ आउटलुक, जिद्दी, ये काम नहीं करना, ये काम कर लो, मैंने नहीं करना, तुम कर लो, करना, रिजिडिटी, इनके चेंजेस, नॉर्मल चेंजेस आते हैं ये। पीछे से आओ, पीछे से आओ, गेट आउट, बंद है तो घर जाओ। डिसलाइक ऑफ चेंजेस, चेंज पसंद नहीं करते,
अब आप कहोगे जी ये है तो कहते नहीं 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 ऐसा नहीं करना, कपड़े ऐसे पहनने, नहीं ऐसा नहीं पहन के, मतलब वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। सोसाइटी में चेंजेस तो आ ही रहे हैं, कपड़ों में चेंज आ रहे हैं, खाने में चेंज आ रहे हैं, हैबिचुअल हैबिट में चेंजेस आ रहे हैं, पैसे खर्च करने में चेंज आ रहे हैं। अपना कहेंगे हमारे टाइम तो ऐसा होता था, अब नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, तो दे आर रिजिड टू चेंज। चेंज नहीं है, चेंज के लिए एंड इम्पेयर्ड इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस। और इंटेलेक्चुअली भी पहले जो बड़ा अपनी बैंक का हिसाब रखते थे, इनकम टैक्स का हिसाब रखते थे, घर का सबका हिसाब, अब उनसे रखते हैं। पैसों का हिसाब नहीं, जेब में 1,000 10,000 रुपये जेब में है, बाजार जाएंगे खर्च करके आ जाएंगे, तो कैसे खर्च होंगे याद ही नहीं, यही नहीं पता लगता कि कौन सा खर्चा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, मतलब इंटेलेक्चुअली फैकल्टीज उनकी कम हो जाती है। दीज आर नॉर्मल चेंजेस एंड डिक्लाइन इन सेक्सुअल परफॉर्मेंस। देन द इमोशनल ऑर्डर, इमोशनल डिसऑर्डर क्या होते हैं? आइसोलेशन, डेथ ऑफ किन एंड किड, लैक ऑफ केयर। एक तो अलग चुपचाप अपने कमरे में पड़े हैं, ये भी होता है कि उनके लाइफ पार्टनर की डेथ होगी, वाइफ औरत है तो उसके हस्बैंड की डेथ होगी, हस्बैंड है तो वाइफ, और कोई कई बार बच्चों की डेथ हो जाती है। बुढ़ापे पहुंचते पहुंचते तो बहुत कुछ चेंज आ जाता है ना फैमिली में, उनकी वजह से दे बिकम आइसोलेशन, डिप्रेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट। आप कहोगे चलो घूम के आते हैं, नहीं नहीं तुम ही घूमी आओ, इंटरेस्ट नहीं है। चलो आज वहाँ अपने रिश्तेदारों के चलते हैं, नहीं नहीं मेरी इच्छा नहीं है, तुम ही जाए हो। दीज आर दी नॉर्मल, लैक ऑफ इंटरेस्ट, सैडनेस, हर टाइम मुंह लटकाए हुए बैठे रहेंगे, उदास, अनएक्सप्लेन्ड क्राइंग स्पेल्स, बैठे बैठे अपने आप रोने, हाय माए। दीज आर नॉर्मल, आपने नोट किया होगा, खुद आपने नोट किया, बैठे बैठे कुछ भी नहीं है, सब कुछ है, बैठे बैठे हाय माए, हाय भगवान, हाय राम। दीज आर दी नॉर्मल क्राई। ओल्ड एज में ये चीजें होती है। यू एज ए डॉक्टर हैव टू टेक इट सीरियसली, ये क्या हो रहा है, इसका मतलब ये इमोशनल डिसऑर्डर आ रहे हैं। यू एज ए डॉक्टर टू कंसोल द अदर फैमिली मेंबर्स के भी, ये जिन चेंजेस आ रहे हैं इनको आप इस ढंग से हैंडल करो। बाहर जाओ, बाहर जाओ। लॉस ऑफ मेमोरी, थॉट ऑफ सुसाइड और डेथ, कई बार मरने की इच्छा आती है, कहते बार बार सुना होगा बुढ़ों को, पता नहीं भगवान मौत भी नहीं देता, सुना है ना बुढ़ों के। ये दीज आर चेंजेज हैं, इमोशनल चेंजेज है। चेंज ऑफ एपेटाइट, भूख न, खाना खा लो, भूख नहीं है। थॉट ऑफ स्लीप पैटर्न, कभी रात को सो रहे हैं, कभी दिन में सो रहे हैं, कोई पैटर्न नहीं है। परसिस्ट फैटिग, हर टाइम थके हुए, हिम्मत नहीं है। एंड लिथार्जी, हर टाइम थके हुए, जो मेरे से चला ही नहीं जाता। ये सारे चेंजेस, इन चेंजेस को हैंडल करना है एज ए डॉक्टर। इस और ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है बुड्ढों की, इसलिए मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट इन कमिंग डेज दिस जीरियाट्रिक्स विल बी ए पॉपुलर टॉपिक फॉर द मेडिकल। लोग उसमें पीजी स्पेशलिटी किया करेंगे अब, कि बहुत सारे ऐसे, और खर्चा गवर्नमेंट देने वाली है इनके लिए, तो खर्चा गवर्नमेंट देगी, तो क्यों नहीं सब्जेक्ट को लोग लेंगे। और बूढ़े आदमी है बहुत ज्यादा, ये भी नहीं भी कुछ मर गया तो घर वाले आ गया हमारे हॉस्पिटल से तोड़ देंगे, बुजुर्ग है जाना ही था चले गए। तो दिस टॉपिक जो हमारे आंकड़े बता रहे हैं, एक्सपीरियंस बता रहा है कि दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी पॉपुलर सब्जेक्ट इन कमिंग फ्यूचर। देन द सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम, पॉवर्टी, आइसोलेशन, आमदनी बंद होगी, काम होता नहीं है, गरीबी, माल एडजस्टमेंट विद यंगर जनरेशन, जो यंग जनरेशन है उनके साथ एडजस्टमेंट ही नहीं हो रहा। वो जिस ढंग से चलते हैं, जिस ढंग से पैसे खर्च करते हैं, जिस ढंग से उनकी हैबिट है, वो उनकी पुराने वाले आदमियों की नहीं है, उनके साथ एडजस्ट नहीं होता। एंड दिस इज चेंजेस, जनरेशन टू जनरेशन चेंज आते ही है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे टाइम में जैसे आई एम ओल्ड मैन की तरह मैं बात कर रहा हूँ आपको। हमारे टाइम जैसे ये होता था, अगर ट्रेन 10 बजे की ट्रेन है तो 9:30 बजे चलो घर पे चलो, जल्दी करो, ट्रेन निकल जाएगी। आजकल मैं अपनी फैमिली में नोट करता हूँ, बच्चों कहते थे कहीं नहीं जाती, ट्रेन उठ जाएगी क्या, चले जाए 5 मिनट कम नहीं, जब तक घर से ही नहीं निकलते। आपने लोग नोट कर, आपकी नेचर है, आपकी जनरेशन कोई बुरा नहीं है, चेंजेज हैं। आजकल के बच्चों, जब हमारे पास पैसे होते थे तब भी नहीं इसके बिना काम कर सकता है, सोफा सेट की जरूरत नहीं, चलो ठीक है, पैसे भी हैं लेकिन नहीं कोई जरूरत नहीं, आज पैसा है तो कमाया किस लिए, खर्च करो। चेंजेज हैं ये, और वो उस जनरेशन में और इसमें फर्क है। इसलिए सोशल माल एडजस्टमेंट, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, जैसे मैं बताया, खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं,
और पेशाब आधा पेंट में जा रहा है तो जा रहा है, नॉट वरी। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, आइडलनेस, अकेले बैठे रहेंगे चुपचाप देख रहे हैं आकाश की तरफ, दीज आर दी नॉर्मल चेंजेस। नाउ वी कम टू पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो असली जीरियाट्रिक्स है। ये तो नॉर्मल थे, ये तो आने ही आने हैं, इनको भी हम हैंडल कर सकते हैं, इनको भी हम हैंडल कर सकते हैं एज ए स्पेशलिस्ट, एज ए डॉक्टर वी कैन हैंडल दी फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो मैंने बताया, सोशल, इमोशनल, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल चेंजेस जो इस एज की वजह से होते हैं। जैसे निमोनिया, मोस्ट कॉमन, चिल्ड्रन में निमोनिया ज्यादा होता है, डायरिया चिल्ड्रन की डिजीज है, यू नो वेल। ऐसे ही ओल्ड एज में कुछ डिजीज है जो पर्टिकुलरली उस एज के लिए ही है। हालांकि आजकल ये भी गड़बड़ हो रहा है, पहले हम कहते थे हार्ट अटैक डिजीज ऑफ ओल्ड मैन, नाउ हार्ट अटैक 30 साल में भी हो रहा है, वो तो चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन ओवरऑल व्हाट आर द वेरियस डिजीजेज ऑफ ओल्ड एज? डिजीज ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सेरेब्रोवास्कुलर स्ट्रोक, दिमाग में ब्लीडिंग हो जाना या ब्लड रुक जाना, इस्केमिक और हेमोरेजिक, देन द कैंसर, डायबिटीज, ओबेसिटी। अब ओबेसिटी आजकल तो गड़बड़ हो रही है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है काम, इन यंग एज को ओबेसिटी हो रही है। तो ये तो लेकिन ओवरऑल दिस डिजीज इज फॉर ओल्ड एज, क्योंकि उनको काम नहीं करना, एनर्जी उनकी वेस्ट होती नहीं है, अगर खाने को मिल रहा है एक्टिविटीज उनकी है नहीं, तो अपने आप ओबेसिटी हो। तो ओल्ड एज में ओबेसिटी तो एक तरीके से कुछ हद तक नॉन है। यंग एज में हार्ट अटैक हो जाना, यंग एज में ओबेसिटी हो जानी, दीज आर समथिंग रॉन्ग विथ आवर लाइफ स्टाइल, ये हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से। देन डिजीज ऑफ आई, कैटरेक्ट, मैकुलर डीजनरेशन, रिफ्रैक्टिव वायरस, मतलब नजर कमजोर हो जाना, रेटिनोपैथी, डिजीज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, लोकोमोटर सिस्टम, स्पॉन्डिलोलाइसिस, ये गर्दन की वर्टेब्रा है वो वीक हो जाती है। देन मायोसाइटिस, मसल वीकनेस, फाइब्रोसाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने नहीं चलते, कई लोगों को घुटने बदलवाने पड़ते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, osteoporosis, gout, rheumatoid arthritis, and even fracture. Then the disease of respiratory system. I am talking about the disease commonly for old age. Old age वालों की बात कर रहा हूँ, वैसे ये डिजीज किसी को भी हो सकती है, but in old age it is very common. Chronic bronchitis. Bronchitis means inflammation of bronchial tree. Chronic means लंबे सालों साल, 2 साल से खांसी आई जा रही है, दम उठ रहा है, chronic bronchitis. ब्रोंकियल एस्थमा, एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा जो लंग्स के एल्वोलाई होते हैं ना परमानेंटली डायलेट हो जाते हैं, उसको एम्फाइसीमा कहते हैं। चेस्ट बिकम बैरल शेप, दैट इज एम्फाइसीमा। डिजीज ऑफ जेनेटो यूरिनरी सिस्टम, एनलार्ज प्रोस्टेट, इनकंटिन्यूंस ऑफ यूरिन, पेशाब रुकता ही नहीं, पेशाब आया अगर उस टाइम अगर पेशाब करने की जगह मिल गई तो ठीक है, नहीं इनकंटिन्यूस ऑफ यूरिन, अपने आप पेशाब आता रहता है, रोकने की कोशिश करते हो लेकिन नहीं रुकता, इनकंटिन्यूस ऑफ यूरिन। डिसयूरिया मीन्स डिफिकल्टी इन यूरिन, पेनफुल यूरिनेशन। नॉक्टूरिया, रात को बार बार उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए। आप यंग आदमी हो, आप रात को एक बार 8-9 बजे सोओगे, उसके बाद सवेरे तक ठीक है, घुटनों को बार बार उठना पड़ता है सारी रात ड्यू टू एनलार्ज प्रोस्टेट। कई कारण हैं which you study in your surgery and things, but nocturia means urination in the night, रात को उठना, urinary infection and fecal incontinence. Just like urinary incontinence, they also sometimes suffer fecal incontinence, latent control में नहीं रहती है। Then the disease of nervous system, Alzheimer disease and Parkinson disease. I think you know what you mean by Alzheimer disease. Alzheimer disease में क्या होता है, सबसे बिल्कुल अपने घर से निकला, मुझ के घर ही नहीं पहुंचेगा, उसको घर ही भूल जाएगा कि मेरा घर कहाँ, अपने आप को भूल जाएगा मैं कौन हूँ। उसको पूछे कि बाबा कौन हो, कहाँ जाना है, पता ही नहीं, आपका नाम क्या है, पता ही नहीं। दिस इज एल्जाइमर। जिनको एल्जाइमर डिजीज हो जाती है उनको घर वाले या तो आजकल मोबाइल वगैरह या आगे रोज कॉन्टैक्ट बैल बुल पे ही रखते हैं और घर से जाने भी नहीं देते। अगर चले भी जाते तो जेब में एड्रेस डाल सकते, हर टाइम उनके एड्रेस जेब में डाला होता है कि कहीं दूर चल जाए तो कोई शरीफ आदमी टकर जाए तो देख तो ले कि कौन है कहाँ से, मतलब अपना नाम भी भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, खाना भूल जाते हैं। उनको खाना खा लो, अभी तो खाया, जबकि 3 दिन से कोई खाना नहीं खाया लेकिन क्या अभी तो खाया।
That is very serious. And luckily, it is very painful situation even for the family member. उसकी एक चौकीदारी और अलग से करनी पड़ती है, निकल नहीं जाए, घर से बाहर ना चला जाए, बाहर चले गए तो पता ही नहीं लगेगा कहाँ गुम हो गए। तरीके अख्तियार करते हैं लोग सही तरीके से। एंड सेकेंड इज पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसन डिजीज, हैव यू यू नो आई थिंक व्हाट डू यू मीन बाय पार्किंसन डिजीज? हाथ कांपने लगता है, बट लिखते हैं तो लिखते लिखते आप कांपते। वैसे ठीक है, ठीक है, तो लेकिन जो बटन बंद करेंगे तो लिखने लगेंगे, वैसे ठीक है, पता नहीं लगेगा, लिखने लगेंगे तो हाथ कांपने लगेगा। दैट इज पार्किंसन डिजीज। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, दिस एक्स्ट्रा पिरामिडल डिजीज। देन द एक्सीडेंट, दे आर प्रोन टू एक्सीडेंट। सड़क पर जा रहे हैं, डीफनेस, सुनता भी कम है, मैंने बताया ना फिजियोलॉजी सुनता ही कम है, पीछे से कोई मार रहा है, बम्पो मार रहा है, उनको सुन ही नहीं रहा। और ठीक है, कोई समझदार आदमी तो बेचारा रोक लेगा, और आप जैसे यंग आदमी होंगे सीधे ठोकेंगे उसको, उसको तो सुन ही नहीं रहा। आप सोचते इतनी दूर से मैं वर्ण बचा दूँ, अपने आप अलग हो जाएगा, वो नहीं होगा, वो अपनी मुश्किल ही चल रहा है। तो दे आर प्रो, फिर चलते तो गिर जाते हैं, क्योंकि और तो कई आर्थराइटिस है, नर्वस कंट्रोल नहीं है, चल भी नहीं तो चलते गिर जाएंगे। इसलिए इनको एडवाइस किया जाता है, जो हम आगे आगे पढ़ेंगे अभी क्या क्या एडवाइस है। जैसे ओल्ड एज आदमी को कहा जाता है कि अगर आपने पैंट भी पहननी है तो खड़े होकर मत पहनिए, बैठ के पहनिए, लटका के पहनिए, तो बैलेंस नहीं होता, गिर जाते हैं। बाथरूम के अंदर उनको कहते हैं कि आप वो पीढ़ी से उसको बैठ के नहाना है, खड़े होकर नहीं नहाना, गिर गए क्यों गिर सकते हैं ये लोग, बैलेंस नहीं रहता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेज फॉर यू कि आप ऐसे मामलों में क्या करते हैं एज ए डॉक्टर, हाउ यू कैन हेल्प दीज ओल्ड पर्सन। इतनी सारी मैंने प्रॉब्लम बता दी इनकी, जो कुछ तो फिजियोलॉजिकल है और कुछ पैथोलॉजिकल है। फिजियोलॉजी में तो कुदरती होनी ही होनी है, आप रोक नहीं सकते। कैटरेक्ट होना है होना है, डिमेंशिया होना है होना है, ज़्यादा कान खराब होने, दांत खराब होने, वो तो कुदरती है, लेकिन मैनेज तो उनको भी करना है। कुछ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो इस एज में डिजीज होती है, हार्ट अटैक है, ये इनको आप एज ए डॉक्टर आप उनको कैसे प्रिवेंट करें, और अगर हो जाए तो मैनेज कैसे करें, बिकॉज ये भी तो डॉक्टर की जिम्मेदारी है ना सारी। फैमिली वालों को तो आप गाइड करेंगे, सब फैमिली वाले करेंगे। और हमारा टारगेट और एम ऑब्जेक्टिव क्या है, एड लाइफ टू ईयर्स, जिंदगी एड लाइफ टू ईयर्स। अगर मैं 71 साल का हो गया हूँ तो ये नहीं कि सिर्फ आपको ऐसा करो कि आप 2-4 साल और जी लो, नहीं। अगर 71 साल को तो मजे से जीऊँ, डॉक्टर का काम है कि वो जो ओल्ड मैन है उसकी लाइफ ऐड करनी है, नॉट ऐड ईयर्स टू लाइफ। ये नहीं कि आप अभी 71 साल के हो गए, अब हम अगर कोई डॉक्टर एज ए डॉक्टर कुछ परवाह नहीं करेंगे तो आप 2 साल में मर जाओगे, नहीं। हम ऐसा कुछ करते हैं कि आप 5 साल और जियो, नहीं, ये नहीं है। वी हैव नॉट टू ऐड ईयर्स टू लाइफ, बट वी हैव टू ऐड लाइफ टू ईयर्स। जितनी उम्र जो भी है उसमें उसको जिंदगी जीनी है, ताकि वो मजे से जिंदगी जिए। जो भी बताया ना, उदास बैठा है, हर कहीं पेशाब कर रहा है, यादाश्त नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, मरने का आ रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, बात हे राम हे माँ मैं क्या करूँ, उस चीज से निकालना है। मतलब जिंदगी जो उम्र है वो है, उसमें कुछ लाइफ ऐड करनी है, इंजॉय ऐड करना है। दिस इज दी जॉब ऑफ द डॉक्टर। केवल जिलाना नहीं है कि हमने वो क्या बोलते हैं उसमें हॉस्पिटल में होता है ना, रेस्पिरेशन वगैरह लगाते हैं ना आर्टिफिशियल। ओल्ड मैन हूँ तो मेरे भी डिमेंशिया हो रहा है। वो हॉस्पिटल में जो लगा देते हैं नाक में मुंह में, बस वो चल रहा है, मशीन चल रही है, आदमी कहते जी रहा है जी, वेंटिलेटर। ये दिस इज गुड एग्जाम्पल ऑफ डिमेंशिया। आई एम 71 तो नेचुरली होना ही है। जैसे मैं भूल गया ना, कॉमन चीज है लेकिन नहीं दिमाग में आ रही है, एकदम से बाद में याद आ गई। तो वेंटिलेटर पर जिलाना नहीं है, वेंटिलेटर लगा दो तो जीता रहेगा, मशीन चल रही है, नहीं, वो लाइफ हमें उसमें लाइफ ऐड करना है, साल ऐड नहीं करना है। तो वेंटिलेटर पर लगा दिया, 5 साल तक जी रहा है, बेहोश पड़ा है, नो। हाउ वी कैन डू दिस, जैसे ऐड टू लाइफ मैन का, जैसे बुजुर्ग आदमी है, फोटो देख रहे हैं, इज वीकिंग, नॉर्मल है, डिप्रेशन में है, जीने की इच्छा ही नहीं है, मरना है, उसके आंसू पोंछने, मतलब जिंदगी देनी है
केवल ये नहीं कि जिंदगी नीचे सलवटों वाला हाथ है, ऊपर दूसरा हाथ है, भी हमने केवल उम्र बढ़ा दी, उम्र नहीं। नाउ हाउ टू प्रिवेंट। पहला तो है प्रिवेंशन, आपने पढ़ा होगा ना, यूजुअली 3 टाइप ऑफ, वैसे प्रीमोर्डियल और है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन ये सारी पैथोलॉजिकल सिचुएशन आए उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी इशू को कहते हैं, प्रॉब्लम आ जाए उससे पहले जो हम करते हैं दैट इज प्राइमरी प्रिवेंशन। उम्र से चेंजेस तो आने हैं, वो आने से पहले उसकी डिसेबिलिटी ना हो, हम क्या कर सकते हैं, वेल बैलेंस्ड डाइट, लो सैचुरेटेड फैट एंड रिफाइंड शुगर, क्योंकि डायबिटीज और ये चांसेज है ना होने के लिए, तो डायबिटीज है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, उनको बचाने के लिए लो सैचुरेटेड फैट एंड रिफाइंड शुगर, फास्ट फूड नहीं, ऐड कैल्शियम रिच डाइट, दूध वगैरह जिसमें कैल्शियम होता है, फ्रूट, वेजिटेबल्स, टोमेटो, गुआवा, वाटरमेलो, पपाया, ये जो रंगीन फ्रूट होते हैं ना, रंग जिसमें रंग होते हैं, टमाटर, पपीता, आम, फिर ये आपका मतीरा जिसमें वो काटते हैं, ये जो कलर्ड फ्रूट होते हैं इनमें एक स्पेशल पिगमेंट होती है जैसे लाइकोपेन पिगमेंट, दिस इज एंटीऑक्सीडेंट। इसलिए ओल्ड आदमी को हम ये फ्रूट ज्यादा एडवाइस करते हैं जो कलर्ड हो, इंक्लूडिंग टोमेटो इवन, अब वो फ्रूट है या वेजिटेबल है वो तो आप डिसाइड कर लें, जो कलर्ड चीज है वो। कंट्रोल ब्लड प्रेशर, पहले से कंट्रोल रखना है, वेट एंड डायबिटीज की फैनी, अगर है डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उनको कंट्रोल, अवॉइड स्मोकिंग एंड लिमिट अल्कोहल। अब आप यहाँ पर कहोगे जी बड़ी अच्छी खुशी की बात है, अवॉइड स्मोकिंग, कंट्रोल अल्कोहल, इसका मतलब अल्कोहल पी सकते हैं, यही हुआ ना। कंट्रोल का मतलब, कंट्रोल कहते हैं डिजीज कंट्रोल, डिजीज इलिमिनेशन वर्ड होते हैं ना, तो कंट्रोल का मतलब बिल्कुल खत्म करना नहीं होता ना, एक एक्सेप्टेबल लिमिट में रखो, इसे बोलते हैं ना कंट्रोल। तो सर मतलब शराब कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अब एक्चुअल ऐसा मैं बता रहा हूँ, स्मोकिंग तो बिल्कुल भी नहीं, शराब से ज्यादा डेंजरस स्मोकिंग, स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं। अल्कोहल, अल्कोहल लिमिट में लें, ये नहीं कि आज बर्थडे पार्टी है पूरी बोतल की बोतल गले से उल्टियां कर रहे हैं, लिट रहे हैं, दैट काजेज डैमेज टू द लीवर, या रोजाना पी रहे हैं, रोजाना शराब पी रहे हैं, वो नहीं, लिमिट थोड़ी सी, अगर आप रेगुलर पी रहे हैं, हालांकि आई पर्सनली डोंट एडवाइस, तो मैं खुद भी नहीं पीता हूँ, तो आई विल नॉट एडवाइस पर्सनली कि आप अल्कोहल लें, लेकिन अगर कोई ले ही रहा है तो वो लिमिट करते, कंट्रोल में रखे, अगर बिल्कुल नील नहीं कर सकता तो कंट्रोल में रखे, एंड अवॉइडेंस ऑफ ड्रग एब्यूज एंड सेल्फ मेडिकेशन, अपने आप दवाइयां ना, ये चीजें हैं प्राइमरी प्रिवेंशन की। और प्राइमरी प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, रेगुलर एंड मॉडरेट एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करें डेली, बट दैट शुड बी मॉडरेट, ये नहीं कि वेट लिफ्टिंग करने लगे, कुश्ती करने लगे, या नो, इट ऐसे नहीं, मॉडरेट एक्सरसाइज, वॉकिंग, जैसे ये सवेरे अपने बूट कस के दोनों बुजुर्ग आदमी घूमने निकले हैं, मॉडरेट मतलब फास्ट चलते रहेंगे सवेरे 40 मिनट, एक हफ्ते में 4 दिन एटलीस्ट, और 40 मिनट्स एक्सरसाइज, रेगुलर एंड मॉडरेट एक्सरसाइज। देन कल्टीवेशन ऑफ इंटरेस्ट इन रीडिंग, कोई अपना एक चाव पैदा कर ले, इंटरेस्ट पैदा कर लें, दैट में बी रीडिंग, राइटिंग, और आजकल तो हमारे टाइम, बुजुर्गों के टाइम, ये आपके लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर होते ही नहीं थे, तो दिस इज वेरी गुड थिंग फॉर ऑल, आज के टाइम में ये कंप्यूटर सीखना शुरू कर दो, कईयों को मोबाइल नहीं चलाना आता, ओल्ड एज वालों को मोबाइल चलाना सीखो, अपने पोतों से सीखो, बेटों से सीखो, इंटरेस्ट क्रिएट करो, ये कुछ इनको सीखो, पढ़ो, लिसनिंग टू म्यूजिक, गाने सुनो, भजन सुनो, हॉबीज, सोशल वर्क, समाज की सेवा करो, ये नहीं 4 रुपये पढ़े, कोई न कोई काम ढूंढ लो, भी आज ये करना है, आज गांवों की सेवा करनी है, आज आदमियों की सेवा करनी है, आज बुढ़ों की सेवा करनी है, आपस में बुढ़े बुढ़े मिलकर सेवा करो एक दूसरे की। पैट कीपिंग, और कुछ नहीं तो कोई जानवर पाल लो, उसके साथ खेलते रहो, तो जैसे इस आदमी की कुत्ता पाल रखा है, बिल्ली पाल लो, कुत्ता पाल लो, मतलब ये ट्रीटमेंट है, ये मैनेजमेंट है, शौक है ना, कुत्ता पालना शौक ही है, बाकी कुत्ता पालना जरूरी तो नहीं है ना, लेकिन शौक है, और शौक बुढ़ापे में जरूरी है, शौक रखना भी, कोई इनको शौक पाल लो, टू कीप बिजी एंड एक्सरसाइज टू ब्रेक, एक तो आदमी बिजी रहेगा, और ब्रेन के जो ओल्ड एज में डिमेंशिया वगैरह हो रहा है ना, ग्रेजुअली ब्रेन डेड हो रहा है,
इस टाइप की जो इंटरेस्ट जो है लाइफ के, भजन है, कीर्तन है, सीख रहा आदमी, ब्रेन का तो आपने पता होगा फिजियोलॉजी, जितना ज्यादा काम लोगे उतना ही एक्टिव रहेगा। और जब काम लेना बंद कर दोगे, मसल्स को काम लेना बंद कर दो, मसल डिस्ट्रोफी हो जाती है, पता ही है। ब्रेन को काम नहीं लो, ब्रेन डिस्ट्रोफी हो जाएगी। तो ब्रेन को इनको काम में लेते रहो। और काम में लेने का तरीका, ये नौकरी तो छूट गई, 80 साल के आदमी नौकरी तो कोई रखेगा नहीं, काम पर कोई रखेगा नहीं, तुम भी मेरे मैनेजर बन जाओ। तो अपने आप बन जाओ मैनेजर, अपने घर का काम सीखो, और कुछ मोबाइल चलाना सीख लो, उसमें वेरियस फंक्शन है, लैपटॉप चलाना सीख लो, कुछ न कुछ पढ़ते रहो, सीखते रहो। कुछ भी नहीं है तो कुत्ते बिल्ली पाल लो, टाइम पास हो। खैर यात्रा पर निकल जाओ कहीं घूमने, आज ग्रुप जा रहा है जी, चलो आज वहाँ की सैर करके आते हैं, आज हज करके आते हैं आज गंगा जी स्नान करके आते हैं। दीज आर दी नॉर्मल चीज। एंड फ्री में काम करना सीखो। अगर मैं डॉक्टर हूँ और अगर इफ यू वांट टू मैनेज माय ओल्ड एज प्रॉपरली, मैं कहूँगा कोई फीस नहीं है, किसी को दिखाना आ जाओ, मेरा फ्री में रहेगा। So to keep myself busy and brain active, drink enough water to keep away renal stone and urinary problem. Old age में आपको प्यास जब पानी की बॉडी में कमी होती है तो हमें पता कैसे लगता है, प्यास लगती है, हम पानी पी लेते हैं। ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम होती है कि प्यास का पता नहीं लगता। इसलिए ओल्ड मैन को अपने आप ही प्यास लगे या नहीं लगे, दिन में कैलकुलेट करके इतना पानी पी लेना चाहिए कि यूरिन प्रॉपर आता रहे, क्योंकि उसको डिहाइड्रेशन महसूस नहीं होता। ओल्ड एज में डिहाइड्रेशन हो रहा है उसको पता ही नहीं लग रहा। यंग एज में डिहाइड्रेशन होते प्यास लगने लग जाती है, इसमें नहीं होता। तो ड्रिंक अनफ वाटर, प्लान फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल, हाउस एंड डिजीज सिक्योरिटी। थोड़ा बहुत आगे का भी सोच लो, बेटा भी हो तो धक्के मार दे, बहू भी धक्का मार दे, पोता भी धक्का मार दे, तो थोड़ा सा जब आप लगे कि ओल्ड एज आ रही है या ओल्ड एज शुरू होगी हमारी, तो फ्यूचर की थोड़ी बहुत प्लानिंग कर लो। आजकल गवर्नमेंट की पेंशनें हैं और उसमें कहीं पैसा डाल लो, कुछ और कर लो, अपने घर का प्रबंध कर लो, डिजीज सिक्योरिटी, कोई जीवन सुरक्षा, कोई इंश्योरेंस ले लो, कुछ न कुछ अपना प्रबंध कर लो। कोई जरूर नहीं है कि आपको सारी सेवाएं करेंगे, वो टाइम गया जब बेटे पोते सेवा करते थे, आजकल नहीं भी करते, उनकी अपनी प्रॉब्लम है, मैं उनको दोषी नहीं मानता। आजकल लाइफ स्टाइल ही सब आदमी की ऐसी हो गई है। अब इंडिया में अगर किसी को अच्छा जॉब नहीं मिलता, बहुत अच्छी क्वालिफाइड आदमी है, जॉब नहीं मिल रहा ढंग का, यूएसए जाना पड़ेगा उसको, जाएगा क्या करेगा? अब वो माँ बाप की क्या कैसे सेवा करे? तो प्रॉब्लम है। तो उन एज आदमी को खुद ही चाहिए भी अपना में। लड़कियां तो लास्ट वाली बैठी है, या तो चुप हो जाओ या आगे आ जाओ। लास्ट वो एक चश्मा वाला भाई जो है ना, उनको बता दो पास वाली लड़कियों को, या तो आगे आ जाओ, या पढ़ना है तो पढ़ो, चुपचाप बैठ जाओ। देन पीरियोडिकल चेकिंग ऑफ विजन, बीपी एंड हियरिंग। अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक कराते रहो, अपने कान चेक कराते रहो, पीरियोडिकल चेंजेस। देन नेक्स्ट, बिल्ड अप ए लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स बाय सेल्फलेस बिहेवियर। स्वार्थ नहीं, बिना स्वार्थ के अपने यार दोस्त इकट्ठे कर लो, ग्रुप बना लो, बुढ़े बुढ़े इकट्ठे हो जाओ सारे मोहल्ले के, आप लकड़ी लेके घूम, जैसे ये बैठे हैं सर दिख रहे फोटो आपके, और इकट्ठे होके कोई छोटे मोटे मॉडरेट एक्सरसाइज करो, गप्पे मारो। ये गप्पे मार रहे हैं बैठे, गप्पे मारने मतलब ये नहीं कि अपने बेटे पोते में बुराई करनी है, ऐसा नहीं कुछ करना, लेकिन मतलब ग्रुप बना लो, टाइम पास हो जाए, डिस्कस करो, अकेलापन ना महसूस हो। अवॉइड लॉनलीनेस बाय एंगेजिंग इन रिक्रिएशनल। अकेले बुढ़े आदमियों को अकेले नहीं रहना। अब आप कहेंगे जी आप हमें डॉक्टरों को क्या बता रहे हो? डॉक्टरों को मतलब है उन आपको ये एडवाइस करना है, यू विल बी द काउंसलर फॉर ओल्ड मैन एज ए डॉक्टर। आपको उनको ये बात बतानी है कि बाबा जी अकेले मत रहा करो, ठीक नहीं है, कोई ग्रुप बना लो, एक्टिविटीज करो, रिक्रिएशनल, थोड़ा जी लगा रहे, लाइट एक्सरसाइज जैसी ये कर रहे हैं, अपने बेटे पोतों के साथ खेल रहे हैं, थोड़ी देर रिक्रिएशनल, कुछ अपने आप को एंगेज कर लो। और कुछ नहीं तो अपनी घरवाली को बैग पकड़ा दो, बाजार में सब्जियां लेने चले जाओ, मतलब कुछ न कुछ एक्टिव लाइफ। ठीक है, बेटों को उनको टाइम नहीं है, नौकरी जा रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, तो अपनी घरवाली को अगर लकीली जीवित है तो उस उम्र में, तो उसको साथ लेके घूम फिर आओ। रिक्रिएशनल एंड योगा एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, छोटी मोटी लाइट योग करो, मेडिटेशन, ध्यान लगाओ। ये दीज आर दी थिंग्स विच हेल्प ओल्ड पर्सन टू लिव ए गुड लाइफ, नॉट ईयर्स ओनली। जीने की बात तो अलग है, फिर 72 के बजाय 80 साल जी लिए,
जितने भी साल जीना है, चाहे 71 है, 72 है, 75 है, जिंदगी मजे से जिए, उनके लिए बातें बता रहा हूँ। बिकॉज ऑब्जेक्टिव मैंने पहले बताया था, एड लाइफ टू ईयर्स, नॉट ईयर्स टू लाइफ। वी हैव टू एड लाइफ टू ईयर्स एंड स्पेसिफिक। ये तो थे प्राइमरी प्रिवेंशन भी। आने से पहले ही अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तो आवर ओल्ड एज और बुढ़ापा ठीक रहेगा। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, इम्यूनाइज अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा, निमोकोकल निमोनिया, टेटनस, ये जो कुछ है यहाँ अपने कंट्री में तो बच्चों को देते हैं, बुढ़ापे में कोई लगाता नहीं। फॉरेन कंट्रीज में तो ये भी होता है। सेलेक्टिवली अगेंस्ट जापानीज इनकेफेलाइटिस, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस। नाउ सेकेंडरी हो गया, बुढ़ापे के लक्षण शुरू हो गए, प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, प्रोस्टेट बढ़ गई, कैटेक्ट हो गया, आर्थराइटिस हो गया। अब क्या करें? सेकेंडरी प्रिवेंशन का पहला ही फार्मूला आप जानते हो कि अर्ली डायग्नोसिस है, कि जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस कर लो और उसका ट्रीटमेंट कर लो। उसके लिए क्या करें? पीरियोडिक स्क्रीनिंग एंड स्टार ट्रीटमेंट। बीमारी नहीं है तो भी आंखों का विजन चेक कराते रहो, कान चेक, अभी दिखाया था ना, फोटो दिखाई थी कि कान चेक कराते रहो, मैं अपना बीपी वगैरह चेक कराते रहो। दैट इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि हमें पता नहीं इनको बीमारी है कि नहीं है, लेकिन चांसेज हैं, उनका चेकअप करने नॉन एज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग करो और अगर बीमारी मिल जाती है तो ट्रीटमेंट। एजुकेट अबाउट द डेंजर सिग्नल ऑफ कैंसर। ओल्ड एज में कैंसर इज वेरी कॉमन। कैंसर के डेंजर सिग्नल आपको पता होगा आइडिया। जो कैंसर का जो एपिडेमियोलॉजी ऑफ कैंसर हम ही पढ़ाएंगे कम्युनिटी में, तो उसमें क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं कि पेनलेस ग्रोथ, पेनलेस अल्सर, दर्द नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उसके वो लक्षण बारे में बात खुद रहो, वो तो नहीं है। वुमेन आर एजुकेटेड रिगार्डिंग सेल्फ पल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट कैंसर इज वेरी कॉमन। ठीक, आप ये नहीं कि डॉक्टरों के पास जाए और वो बताएं तभी पता लगे। आप फीमेल को खुद ही एडवाइस की करते हैं, जो ब्रेस्ट को पल्पेट करते हैं, तो प्रॉपर मेथड हाउ टू पल्पेट। 4 क्वाड्रेंट ब्रेस्ट हैं, उनको चारों को पल्पेट करके कहीं भी लगे उनको कि समथिंग इज रॉन्ग, कोई ट्यूमर या कोई हार्ड चीज उनको फील हो रही है, देन विजिट द डॉक्टर। Exfoliative cytology of vaginal and cervical smears who are complaining of bleeding after menopause. Menopause is a stage where bleeding monthly stop. यही है ना? उसके बाद तो ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेनोपॉज के बाद अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, देन इमीडिएटली एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी और वेजाइनल सर्फेस स्मेयर लेके उसका रूल आउट कर लें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नाउ दीज वर दी सेकेंडरी प्रिवेंशन में तो प्रॉब्लम हो गई। टर्शरी प्रिवेंशन क्या है? केवल प्रॉब्लम हो ही नहीं गई है, दैट प्रॉब्लम है काफी डैमेज आल्सो, डैमेज भी करती है। प्रेशर यही होता है ना, प्राइमरी प्रिवेंशन होने से पहले, सेकेंडरी प्रिवेंशन होने के टाइम, और टर्शरी प्रिवेंशन मतलब बीमारी हो गई, होके उसने कुछ डैमेज भी कर दिया। जैसे पोलियो है, पोलियो प्राइमरी प्रिवेंशन पोलियो का क्या है? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन करवा लो पहले ताकि पोलियो हो ही ना। उसके बाद भी पोलियो हो गया, सेकेंडरी प्रिवेंशन आ गया, अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, जल्दी जल्दी डायग्नोसिस करो, उसका ट्रीटमेंट करो, ठीक हो जाए। उसके बावजूद भी अगर पैरालिसिस हो गया, लिम्ब बेकार हो गई एक साइड की, उसमें जो प्रोसेस लगाना, ऑपरेशन करके दैट इज सर्जरी करो, उसको कोई ऐसा जोड़ दे देना जो काम कर ले। तो इसमें भी अगर मान लो डैमेज हो गया, वो स्टेज आ गई, डिजीज रोक नहीं पाए, हो गई, उसको ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, डैमेज भी कर दिया उसने, देन टर्शरी प्रिवेंशन, डिसेबिलिटी प्रिवेंशन। प्रॉब्लम तो होगी, इसके भी 3-4 स्टेजेस होती हैं। डिसेबिलिटी प्रिवेंशन मीन्स डिसेबल आदमी, ये ना ठीक है घुटने में दर्द हो, आर्थराइटिस हो गया, कुछ नहीं कर सकते, इलाज भी नहीं कर सकते, लेकिन चल रहा है, उसको ऐसा तो कर दो जो चलने लायक तो रहे। डिसेबल मतलब ये ना हो कि वो चल ही ना सके, इतना डिसेबल हो जाए। इंटेंसिव ट्रीटमेंट हु कम इन एडवांस स्टेज, ज़्यादा एडवांस स्टेज में आते हैं, उनका ट्रीटमेंट। रिहेबिलिटेशन, ट्रेनिंग एंड रिटेनिंग द रिमेनिंग कैपेसिटी टू बिल्ड अप सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो हो गया डैमेज हो गया, जो बाकी जितना एक्टिविटीज बची है, जितने पहले जितने काम तो नहीं करेंगे, जितना हो सकता है उतना करें। रिहेबिलिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन मेजर कैटरेक्ट सर्जरी, सफ़ेद मोती के ऑपरेशन, प्रोविजन ऑफ स्पेक्टिकल्स, हियरिंग एड्स, आर्टिफिशियल लिम्ब, ईयर मॉड्यूल, प्रोस्थेसिस मतलब वो पैर खराब हो गए तो बैसाखी वगैरह बोलते हैं, दैट इज प्रोस्थेसिस।
फिजियोथेरेपी, वोकेशनल थेरेपी, साइकोलॉजिकल एंड सोशल थेरेपी। सोशल थेरेपी में समाज में कैसे रहना है उसको, दिस इज द ट्रेनिंग टू बी गिवन। एंड डी एडिक्शन एंड काउंसलिंग हु हैव बिकम एडिक्ट, अगर कोई दवाइयों के नशेड़ी हो चुके हैं उनको नशों से कैसे हटाना है। हो गया वो तो एडिक्ट हो गए, ध्यान नहीं रखा शुरू में, अब कैसे। स्टेप्स टू इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी लाइफ, कल्चरल प्रोग्राम, हरि कीर्तन, पिकनिक, टूर, ओल्ड एज क्लब, ओल्ड एज होम, मे बी सम ऑफ दी। आखिर में एक ये अभी अखबार में मैंने देखा था, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, इसमें बहुत अच्छी मतलब ओल्ड एज में आदमी को किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी होती है, एक तरीके से समराइज है। दिस इज नॉट फॉर द डॉक्टर्स, ये आप लोगों के लिए वैसे नहीं है। दिस स्लाइड इज नॉट फॉर द डॉक्टर्स एक्चुअली, आप तो बहुत कुछ जानते हैं, ये डॉक्टर्स के द्वारा तैयार की गई है। एडवाइस टू द ओल्ड एज भी, इनको क्या क्या करना है। वाशरूम दरवाजा भीतर से बंद ना करे, भीतर से बंद कर लिया राम जैसी गिर गए, उठा भी नहीं जाएगा, कौन घर वाले उठते नहीं नहा रहे और राम नाम खत हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें, दीज आर द एडवाइस बाय द डॉक्टर्स टू द ओल्ड एज, लेकिन बहुत अच्छी हैं। इनके बेसिस पर आप अगर क्वेश्चन आता है तो इस बेसिस पर भी आप क्वेश्चन को रिप्लाई कर सकते हैं। तो अब है ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी। फिर बुढ़ापा आ गया तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या कुछ कर रही है, दैट आई विल, दिस इज नॉट इन दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आज के टॉपिक का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने लिख रखा है, मैं सोच रहा हूँ अभी 10 मिनट 5 मिनट है हमारे पास, तो इसको ले लेते हैं। हेल्दी ओल्डर पर्सन एट रिसोर्ट, लोग ये ना सोचे कि बुढ़ापा बोझ है, समाज ये सोचे कि ये एक्सपीरियंस पर्सन है, रिसोर्स है हमारे लिए। डेवलपमेंट कैन ओनली बी इंश्योर्ड इफ ओल्डर पर्सन एंजॉय हेल्दी हैप्पी एंड, अगर बूढ़े आदमियों की लाइफ ठीक है तभी सोशल प्रॉब्लम है। जॉइंट फैमिली एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर फैमिली ब्रोकन खत्म हो गई आजकल। ओल्डर पर्सन ट्रैप्ड इन मिजरी ड्यू टू लो इनकम एंड पुअर हेल्थ, मोस्ट इंजर्ड आर मायोपिक ड्यूरिंग, जवानी के टाइम तो उन्होंने परवाह नहीं की कि हमारा हाल क्या होगा, ना पैसा बचाया ना कुछ किसी से रिश्ता रखा, अब बुढ़ापे में सब कुछ झमेला हो रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ सोशल फंक्शन कर रखे हैं, ओल्ड एज है, सोशल सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविडेंट फंड है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है, वॉलंटरी पेंशन स्कीम है, नॉन कंट्रीब्यूटरी गवर्नमेंट पेंशन जो बुढ़ापे में पेंशन मिलती है, पेंशन है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन है, दीज आर दी वेरियस सोशल सिक्योरिटी नेट। पेंशन स्कीम जो आप 65 उनको बीपीएल वालों को पैसे, दीज आर दी वेरियस सर्विसेज। नेशनल पॉलिसी जनवरी 1991 में एक बुढ़ापे स्कीम बनी गवर्नमेंट की तरफ से, वेलबींग ऑफ ओल्डर पर्सन, बेनिफिट गिवन टू सीनियर सिटीजन को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट गवर्नमेंट देती है। नेशनल पॉलिसी है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में ओल्ड एज पेंशन है, अन्नपूर्णा स्कीम है, फाइनेंस डिपार्टमेंट कुछ छूट दे रहा है, इनकम टैक्स में 50,000 की रिबेट है। यंग जो आप जैसे आदमी है कोई भी है 60 साल से नीचे हैं उन पर 2.5 लाख की इनकम के बाद इनकम टैक्स लगना शुरू हो जाता है। जिसकी इनकम 2.5 लाख है उसके ऊपर इनकम टैक्स स्टार्ट हो जाता है, इनकम टैक्स कटना शुरू हो जाता है। बट ओल्ड एज वालों के लिए 50,000 की छूट दी, उनके 3 लाख के बाद इनकम टैक्स कटता है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने छूट दे रखी है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम पेइंग एडवांस टैक्स, टैक्स पहले देना होता है उनको छूट है बुढ़ापे ओल्ड एज के बाद में रिटर्न भरते टाइम टैक्स दे देना, अगर कुछ देना भी है तो। मेडिकल इंश्योरेंस अगर है तो उसके पैसे भी छूट हो जाती है। एक्सक्लूडेड इन सम केसेस, कई बार इनकम रिटर्न भरने की छूट भी नहीं है। FDR जो आप कराते हैं जमा, उसमें जितना ब्याज मिलता है 60 साल से ऊपर वालों को 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है हर बैंक में, नॉर्मल नियम है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। सेपरेट क्यूज एंड नो रजिस्ट्रेशन फीस, बुढ़े आदमियों को हॉस्पिटल में लाइन अलग होती है, अब आप जवान आदमी नहीं उनकी लाइन लगने दे तो बात अलग है, गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं, उनकी लाइन अलग होगी, उनकी रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लगेगी। लाइन भी हर जगह लाइन अलग होती है। रेलवे में 40% तक कंसेशन मिलता है, मेल 60 साल को और फीमेल 58 साल, 40% कंसेशन को कम नहीं होता। और रोडवेज में 30% कम कंसेशन मिलता है। व्हेन एवर आई ट्रेवल टू माई विलेज आई पे 30% लेस देन यू, आपसे 30% कम देता हूँ बिकॉज आई एम सीनियर पर्सन। रेलवे में मैं 40% कम देता हूँ, चाहे कौन सी कैटेगरी है, A B C कोई सी हो जाए। ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड में 30% है,
डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम है, हेल्पेज इंडिया, दीज आर दी वेरियस स्कीम्स। और कई जगह ओल्ड एज रेस्पेक्ट, ये सारे आप कहोगे ये तो नियम बना रखे हैं, मानता तो कोई नहीं, सब मानते हैं। मैं अपना